हरे कृष्ण। सब सभी का बहुत स्वागत है। गौर कथा चैतन्य भागवत से। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य भागवत आ, आदि खंड की लीला। ये तो खैर हम्म, संध्या मध्य खंड की थी। उसके बारे में किससे क्या हम लोग आदि खंड चैप्टर 10 मैरिज विद श्री लक्ष्मी प्रिया। ये अध्याय एक्चुअली हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का पहला विवाह श्री लक्ष्मी प्रिया माता जी के साथ कंप्लीट हो चुका था। अब चैप्टर 11 चालू करना था, जिसका नाम है मीटिंग विद श्री ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के साथ महाप्रभु का मुलाकात होना। पहला मुलाकात श्री नवदीप धाम में होता है। इसका वर्णन इस अध्याय में। जय 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 महेश्वर गौर चंद्र बाल्य लीला श्री विद्या लीला से रखेंद्र। श्री गौरचंद्र भगवान की जय हो, जो अपनी बाल्य लीलाओं में विद्या विलास की लीला। ही वॉज द रिजर्वियर ऑफ स्कॉलिस्टिक पास टाइम्स इन हिज चाइल्डहुड। बाल्य लीला में विद्या विलास की लीला करते हैं भगवान। विद्या विलास की लीला मालूम है? विद्या विलास की लीला मतलब शास्त्रों पढ़ने में, आर्गुमेंट करने में, तर्क वितर्क करने में, वो लीला। सो मते गुप्ता भावे आचे द्विजराज अध्ययन विना नाही कोन काज। जिनिया कंदर्प कोटि रूप मनोहर रति अंगे निरुपमा लावण्य सुंदर। इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु द्विजराज ब्राह्मणों के राजा, द बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणास, गुप्त भावे गुप्त रूप से नवद्वीप में रहते थे। और अध्ययन करने के सिवा और उनका और कोई कार्य नहीं होता था। जिनिया कंदर्प कोटि रूप मनोहर प्रति अंगे निरुपमा लावण्य सुंदर। आजानुलंबित भुज कमल नयन अधरे तांबूल दिव्या वास परिधान। His form was as enchanting as millions of cupids. जीनिया कंदर्प कोटि, करोड़ों करोड़ों कामदेवा देवताओं को भी मोहित करने वाला रूप मनोहर। प्रति अंगे निरुपम लावण्य सुंदर। Each of his limbs was incomparably charming. एक एक उनके जो अंग है, लावण्य रसीमा। इनकम्परेबली कोई तुलना नहीं है, इतने सुंदर। आजानुलंबित भुजा, उनके हाथ घुटनों तक जाते हैं। उनकी आंखें जो है, पेटल्स ऑफ अ लोटस। लोटस कमल के कमल पुष्प की पंखुड़ी की तरह उनकी आंखें। एंड ही च्यूड बीटल नट एंड ड्रेस डिवाइनली। हाँ, मस्त बढ़िया सुंदर पान चबा रहे हैं और बड़े सुंदर परिधान पहने हुए हैं। आदरे तांबूल, chewed betel nut, as are explained as follows. On seeing Sri Gauri Sundar's wonderfully sweet beauty,
which defeats that of millions of cupids. His matchless effulgence emanating from his bodily limbs, his long arms that stretch to his knees, his lotus eyes, his fine dress, and beetle nuts between his lips. The conditioned souls who have been awarded ugly material bodies, short arms, and harsh eyes, and who desire sense gratification, consider Sri Gaur Sundar as attached to material enjoyment and intoxication and possessing a material body like themselves. But if they understand the extraordinary glories of Sri Gaur Sundar, it will help the envious living entities realize that uh, their material bodies, which are fit to be eaten by dogs and jackals, and their minds, which are attached to misconceptions, are abominable. Although Sri Gaur Sundar accepted innumerable items of enjoyment such as betel nuts, he instructed everyone for their eternal benefit to engage each and every item in the service of Sri Krishna, who is the only object of all enjoyment. In other words, he taught that if living entities eligible for being controlled by Maya enjoy insignificant material sense objects, their inauspiciousness is guaranteed. For these items are eternally prescribed as ingredients for the service of the Supreme Lord. सुनते जाइए सिर नीचे क्यों कर रहा है Although the display of such pastimes by Sri Gaur Sundar is meant to be seen and analyzed by self-controlled sadhakas, the eternally envious ignorant observers are simply bewildered as a reward for their foolishness. Since Sri Gaur Sundar is situated on the highest platform of the Absolute Truth, his exhibition of renunciation pastimes was not intended to protect himself from the mundane difficulties imposed by non-devotional endeavors like those of conditioned souls who desire self-control and liberation, and who display an indifferent lifestyle in order to remain detached or separate from material objects. Rather, he empowered the most fortunate persons to understand the important truth that in the characteristics and personality of the Supreme Lord, the performance of such pastimes is not at all abominable or fault. समझे आपके लिए पूरा पढ़ पढ़ा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ भगवान गौर सुंदर जो कि अपने गृहस्थ आश्रम के लीला में अनेकों प्रकार के ऐसे वस्तुओं का भोग करते हुए प्रतीत हो रहे हैं लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो इस प्रकार से सोचते हैं कि उनका ये जो सेंस एंजॉयमेंट है वो हमारे जैसे थर्ड क्लास एबॉमिनेबल सेंस एंजॉयमेंट की तरह है और उनका जो शरीर है हमारे जैसा जो तुच्छ शरीर है उसके जैसा है इस भौतिक संसार में किसी भी व्यक्ति का जो भी सुंदरता होता है जो भी इंद्रिय होता है सब एबॉमिनेबल एबॉमिनेबल मतलब घटिया घटिया प्रकार की सुंदरता होती है घटिया प्रकार का तुच्छ सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है लेकिन भगवान की सुंदरता और जो सेंस ग्रेटिफिकेशन भगवान करते हैं वो परफेक्ट होता है एबॉमिनेबल नहीं होता ट्रांसेंडेंटल होता है डिवाइन होता है और जितने भी आइटम है संसार में वो सब भगवान के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है लेकिन जो एनवियस इग्नोरेंट ऑब्जर्वर होते हैं वो इससे बिविल्डर हो जाते हैं और कुछ लोग सोचते हैं अरे भगवान इंजॉयमेंट करते हैं हम क्यों नहीं इंजॉयमेंट कर सकते भगवान ने भी विवाह किया भगवान की इतनी सारी पत्नियां हैं हम क्यों नहीं रख सकते हैं भगवान इतना अच्छा अच्छा खाते हैं हम क्यों नहीं खा सकते हैं जैसा कौन सोचता है दोज वर एनवियस इग्नोरेंट फूलिश ऑब्जर्वर होते हैं वो लोग और अपने खुद के ही अहित को न समझते हुए अपने हित और अहित के बारे में न समझते हुए इस प्रकार से गलत धारणा रखते हैं एनीवे but the Supreme Lord, the performance of such pastimes are is not at all abominable or faulty. भगवान में कोई faulty because he is the actual enjoyer. Anyway, भगवान यहाँ पे लीला कर रहे हैं जो लोग जिनका हृदय दूषित होता है जो इस संसार के इंद्रिय तृप्ति की भावना से ही यहाँ एकमात्र आकर्षित होते हैं वो भगवान के सुंदर स्वरूप को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं भगवान के द्वारा जो सेंस ग्रेटिफिकेशन किया जाता है उसको भी अप्रिशिएट नहीं कर सकते सर्वदाय परिहास मूर्ति विद्या बले सहस्र पाडुय संगे जबे प्रभु चाले सर्वनवद्वीपे भ्रमे त्रिभुवन पति पुस्तकेरा रूप करे प्रिय सरस्वती As the Lord walked with thousands of his students by the strength of his knowledge, he entertained everyone with his sharp wit. अपने हजारों हजारों शिष्यों को साथ में लेकर के चलते थे जब भगवान अपने ज्ञान के बल पे जो भी वहां पे उपस्थित थे उनको सबको क्या करते थे आनंद प्रदान करते थे हाँ, सर्वनव द्वीप है
भ्रमे त्रिभुवनपति पुस्तकेर रूपे करे प्रिय सरस्वती. Vishwambar, the lord of the three worlds, traveled all over Navadip holding in his hand his beloved Saraswati in the form of a book. अपनी प्रिय सरस्वती. हाँ. सरस्वती, माता सरस्वती कृष्ण की पत्नी है. गायत्री, सरस्वती, सावित्री. ये तीन जो है, तो हम लोग तीन संध्या गायत्री करते हैं. उसमें से एक गायत्री है, एक सरस्वती है, एक सावित्री. कृष्ण की पत्नी है, अर्धांगिनी. ये भौतिक जगत में जो सरस्वती है वो अलग है. आध्यात्मिक जगत में भगवान की शक्ति है सरस्वती. सुधा सरस्वती उनको बोलते हैं, प्योर सरस्वती. और आध्यात्मिक ज्ञान, उनकी कृपा से ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है. तो अपनी प्रिय प्रिय सरस्वती को साथ में लेकर के ग्रंथ के रूप में विष्णु पूरे नवद्वीप में भ्रमण करते थे. In the form of books, Mahalakshmi Narayani, the goddess of speech, always remained in the lotus hands of her lord Gaur Narayan, and thus fulfilled the meaning of the Lord's name, Vachaspati, the husband of the goddess of speech. Yes. Vachaspati, husband of the goddess of speech. Nice. अर्थ है वाचस्पति. सरस्वती, सुधा सरस्वती. हाँ. नवद्वीपे ही नाही पंडितेर नाम, ये आसिया बुझिबे का प्रभुर व्याख्यान. सबे एक गंगा दास महाभाग्यवान, जार थाई प्रभु करे विद्यार आदान. There was no scholar throughout Navdeep who could understand Nimai's explanation. कोई ऐसा पंडित नहीं था पूरे नवदीप में जो निमाई की व्याख्या को समझ सके. The Lord discussed his explanations only with the most fortunate Gangadas Pandit. अपने गुरु गंगादास पंडित, सबसे भाग्यशाली, उनके साथ ही केवल अपनी व्याख्याओं को चर्चा करते थे. सकल संसारी देखी बोले धन्य धन्य, ये नंदन जहारा ताहारा को न दैन्य. जते का प्रकृति देखे मदन समना, पाषंडी देख जेना यम विद्यमान. So all the materialistic people said, the parents of this boy are certainly glorious. What can they be lacking? सभी भौतिकवादी व्यक्ति लोग सोचते थे कि इस बालक के माता पिता तो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं. बहुत ग्लोरियस है. उनको और किस चीज की कमी हो सकती है. ऑल द लेडीज कंसिडर द लॉर्ड टू बी एज अट्रैक्टिव एज क्यूपिड. जितनी भी स्त्रियां थी वो विश्वम्बर को देखती थी तो मदन के समान देखती थी. बहुत ही अट्रैक्टिव, आकर्षक. और जितने भी एथिस्ट थे, नास्तिक लोग थे, वो उनको यम विद्यमान, साक्षात यमराज सामने खड़े हैं, ऐसा उनको प्रतीत होता था. हाँ. इसमें बहुत अच्छा तात्पर्य लिखे हैं श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद. In this material world, the men are the enjoyers and the women are the objects of enjoyment. In other words, the women are enjoyed by the men and the men are enjoyed by the women. An enjoyer enjoys his objects of enjoyment with his senses. Both the male and female enjoy material objects through their jnanendriyas. Jnanendriyas are knowledge-acquiring senses, and karmendriyas are working senses. Gaur Sundar is directly Lord Krishna, therefore he is the abode of all beauty, surpassing millions of cupids. Gaur Sundar is never an object of enjoyment for mundane women. That is why he cannot be the object of worship for the Gaur Nagaris. Gaur Nagari log ke liye nahi. When a living entity becomes self-realized, the Madan Mohan form of Gaur Sundar manifests within his heart. Although the conditioned souls who identify themselves as women may consider Gaur Sundar as an object of enjoyment, Gaur Hari does not fulfill their prayers. The moods of master and servant are present in this material world. For the living entities to think themselves the masters of material nature, rather than considering themselves the servants of the Supreme Lord, is an impediment in their constitutional duties of devotional service.
यानी अपने आप को हमेशा भगवान का तुच्छ विनम्र दास के रूप में स्वीकार करना चाहिए, भगवान को भोग करने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। Sri Gaur Sundar has personally displayed to the living entities the prime example of how to be a servant of the Supreme Lord and thus remove the enjoying mood from their conditioned minds. That is why the followers of Gaur Hari cannot accept him as Nagar, the enjoyer of women. Lord Gaur Sundar never demonstrated that he was under the control of any material condition in his pastimes, but even if someone out of great misfortune forgets that he is an eternal, he is the eternal servant of the servitor of God and thinks himself to be the object of service. Sri Gaur Sundar still awakens his service attitude towards Gaur Krishna by removing such evil propensities. तो भगवान गौर सुंदर इसमें से चैतन्य महाप्रभु को कोई ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट के रूप में नहीं देखना चाहिए, इटर्नल सर्वेंट के रूप में देखना चाहिए। पट्टित सकला देखे जेना बृहस्पति, ए मत देखे सबे चार जेना माती। तो जितने पंडित लोग थे, पंडित सकल स्कॉलर लोग, वो गौर सुंदर मोहन को कैसे देखते थे? साक्षात बृहस्पति के रूप में देखते थे। बृहस्पति ही सामने आ गए, देवताओं के गुरु बृहस्पति। यही मतलब देखिए, देखी विश्वम्भर रूप सकल वैष्णव, हरीश विषाद हई मने भावे सबा। Seeing Vishwambar's attractive form, the Vaishnavas felt uh, both jubilation and lamentation. विश्वम्बर के अद्भुत ऐसे अट्रैक्टिव आकर्षक रूप को देख करके वैष्णवों को बड़ा सुख भी मिलता था और लैमेंटेशन सुख भी होता। न दिव्य शरीरे न है कृष्ण रसा, की करीबे विद्याया हले कालवासा। मोहित वैष्णव सब प्रभु रमाया, देखिया वो तब के हा देखीते न पाया। सो वैष्णव लोगों को बहुत ऐसे सुंदर आकर्षक विश्वम्बर के रूप को देख करके बहुत सुख भी मिलता था, बहुत दुख भी होता था। दुख क्यों होता था? वो सोचते थे कि हालांकि इनका बहुत दिव्य शरीर है, लेकिन इनको कोई कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं है। What good is his education if he simply wastes his time? इसके शास्त्र पढ़ने का, डिस्कशन करने का क्या फायदा? सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम है। All the Vaishnavas were bewildered by the internal potency of the Lord. भगवान विश्वम्बर की योग माया से सबके सब भ्रमित थे। So even though they saw the Lord, they didn't understand. समझ में आया? उत्तर मिल गया ना? हालांकि भगवान को देख रहे हैं, फिर भी कुछ समझ नहीं पाते थे, भ्रमित रहते थे। हाँ, इंद्र बाकी लोग जो है महामाया से कवर हो जाते हैं, और भगवान अपने भक्तों को योग माया से कवर करते हैं, माया के प्रभाव में आकर के व्यक्ति। हाँ, साक्षात वो प्रभु देखी केहा बोले, की कार्य गो आओ काल तुम्ही विद्या बोले। सुनिया सेना प्रभु सेवकेरा वाक्ये, प्रभु बोले तुम्हारा सिखाओ मोरा भाई। तो कुछ वैसे लोग साक्षात डायरेक्ट आकर के भगवान को जब देखते थे तो बोल देते थे, Why do you waste your time in the fruitless pursuit of knowledge? अपना समय क्यों करते गवाते हो अननेसेसरी शास्त्र का तर्क वितर्क करके? भगवान कृष्ण का भक्ति करो, नाम जप करो, इतना सुंदर दिखते हो, इतना बुद्धि है, इतना इन्फ्लुएंस है, सब कुछ अच्छा है, ये शास्त्र में तर्क वितर्क करके क्यों समय व्यर्थ गवाते हो? ऐसा कुछ कुछ भक्त लोग बोल देते थे। तो ये सब सुन करके भगवान स्माइल करते थे। The Lord smiled on hearing his servants speak like this and he replied, I am fortunate to have you instruct me. मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मुझे शिक्षा दे रहे हो, लेकिन क्या करूँ, मैं शिक्षा ले नहीं सकता हूँ। ऐसा बोले नहीं, मतलब कहने का मतलब यही, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपकी शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। हाँ, बहुत भाष खास के बोल रहे हैं तो मतलब यही है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपसे शिक्षा मिल रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं आई एम अटैच्ड टू सेंस ग्रेटिफिकेशन। It is my great fortune that you are all instructing me to become a devotee of Hari.
नमते प्रभु गोजाए न विद्या रसे सेवकाची नित्य नारे अन्य जन की से चतुर्दिके हईते लोक नवद्वीपे जाय नवद्वीपे पढ़िले से विद्या रस पाया। इस प्रकार से आ, इस अपने विद्या रस के लीला को भगवान कर रहे हैं नवद्वीप में रहते हुए। उनके सेवक लोग भी उनको पहचान नहीं रहे हैं, तो बाकी लोगों का क्या कहना। चतुर्दिके पीपल केम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया टू स्टडी इन नवद्वीप। if one studied in Navadip, she got a taste for education। पूरे भारतवर्ष से लोग नवद्वीप में आते थे पढ़ने के लिए, और नवद्वीप में आके जब पढ़ते थे तब उनको वास्तविक रूप में विद्या रस मिलता था। ये नवद्वीप की ख्याति। छाटी ग्राम निवासी वो अनेके तथाया पढ़े न वैष्णव सब रहे न गंगाया सबाई जन्मिया छेन प्रभुर आज्ञाया सबाई भी रक्त कृष्ण भक्त सर्वथाया। So many Vaishnavas came from छाटग्राम। छाटग्राम से कई वैष्णव आए जो गंगा नदी के तट पे रहते थे और नवद्वीप में पढ़ाई करते थे। हाँ, तो छाटग्राम से नवद्वीप में आए। They were all renounced devotees of Krishna and had taken birth by the order of the Lord। ये सब के सब वास्तव में भगवान कृष्ण के विरक्त भक्त हैं, लेकिन भगवान के आदेश पे अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से जन्म लिए थे। भगवान को विद्या रस की लीला में भाग लेने के लिए, फिर बाद में संकीर्तन लीला में भी भाग लेते हैं। अन्यो अन्य मिले सबे पढ़िया सुनिया करे न गोविंद चर्चा निभृते वसिया सर्व वैष्णवेर प्रिय मुकुंद एकांत मुकुंदेर गानित्रवे सकल महांता। तो सब लोग स्कूल जाते थे, विद्या ये शास्त्र की शिक्षा पढ़ते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन जो वैष्णव गण थे वो लोग स्कूल के पश्चात फिर आपस में मिलते थे किसी एकांत स्थान में और कृष्ण कथा का चर्चा करते थे। और उसमें श्री मुकुंद जो थे वो सभी वैष्णव को बड़े प्रिय थे। क्यों? क्योंकि उनका जो कृष्ण का कीर्तन करते थे उससे सबका हृदय द्रवित हो जाता था, वो कृष्ण कीर्तन को सुन करके। विकलाइले आसी भागवत गणा अद्वैत सभाय सबे आए न मिलाना जे मात्र मुकुंद गाय न कृष्ण गीता एना नाही जानी के बा पढ़े को न भीता। So in the afternoon, all the devotees regularly met in the house of Advaita Prabhu। दोपहर में स्कूल के बाद सभी भक्त लोग अद्वैत प्रभु के घर पे मिलते थे। हाँ, और as soon as Mukunda would begin singing about Krishna, everyone there fell to the ground in ecstatic love। और जैसे मुकुंद कृष्ण के बारे में गाते थे, सब लोग धरती में गिर गिर करके लोटपोट करने लग जाते थे कृष्ण के प्रेम को महसूस करते हुए। केहा कांदे केहा हासे केहा नृत्य करे गड़ गड़ी जाय केहा वस्त्र न संभारे ओंकार कराए केहा माल साथ मारे केहा गिया मुकुंदेरा दुई पाए धारे। ऐसा अद्भुत कीर्तन सुन करके कुछ लोग रोते थे, कुछ हंसते थे, कुछ लोग नाचते थे। और द क्लॉथ्स ऑफ सम पर्सन स्कैटर्ड एज दे रोल्ड ऑन द ग्राउंड। जमीन में लोटपोट करते थे, कुछ लोगों के कपड़े इधर उधर बिखर जाते थे। Gara Kariya, someone rode as he challenged the agents of Maya। Someone else caught hold of Mukunda's feet। कुछ लोग ऐसे अद्भुत कीर्तन में कृष्ण प्रेम को अनुभव करते हुए जोर से हुंकार करते थे, माया के जो एजेंट उनको चैलेंज करते थे। हाँ, और कुछ लोग मुकुंद के चरण कमलों को पकड़ने के लिए दौड़ते थे।
यही मत उठे या परमानंद सुखा, न जाने वैष्णव सब आर को न दुखा। इस प्रकार से परमानंद सुख को महसूस करते थे सब वैष्णव लोग, और कोई दुख है सब भूल जाते थे। हाँ, प्रभु और मुकुंद प्रति बड़ा सुखी माने, देखी ले मुकुंदेरा धारे ना आपने। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब मुकुंद को देखते थे तो बड़ा सुख महसूस होता था, बहुत संतुष्ट हो जाते थे। और उनको देख करके उनको तुरंत पकड़ लेते थे, पकड़ के क्या करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे। और क्या क्या बोलते थे ये हम लोग कल चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।